Okay, hi students, hello there. This is the GK class for 7th. Take it. And in the last class we completed this one, business and industry, where we studied about for some famous business persons of India. Now it's a page called Quick Quiz. So here we will fill up the blanks. Um, it's okay. Basically, these fill in the blanks are related to uh, the pages we have completed till now. Okay, everything has come from the pages, number of pages we have completed till now, till page number 20. Okay, so everything is from there. We have to read the information and accordingly we have to fill in the blanks. So accordingly, question number 1, blank number 1 says, name the omnivorous huge animal. Omnivorous, the animal that eats meat as well as plants. Huge animal with a hump on shoulders. Okay, a hump means an elevated area. Okay, so the shoulders of that animals are elevated. Okay, and an elevated forehead, and a forehead means kapal. You know what kapal is? Forehead elevated, it goes upwards. So what is it? It feeds on berries, plants, roots and shoots and fish. So what is it? It's a bear. Why bear? Bear has elevated forehead. See, it's going upward, right? Then there comes the nose, face, ear, है ना? And its shoulder is always humped like this. It goes above its ear. ठीक है? That is why bear is facing down at most of the time, because shoulders are upward, isn't it? This is the basic posture of a bear. Okay, so it's bear. To be precise, write grizzly bear. Why? Because grizzly bear is an omnivorous bear. There are many bears that are only herbivore. Okay, grizzly bear is one of the basic omnivore bear. GRIZZLYBEAR, grizzly bear. Now, number 2, known as the Flying Sikh. Okay, I'm quite sure you must have known who is the Flying Sikh, and he also won Olympic gold in Rome in 1960. Is Sir Milkha Singh, and Sir Milkha Singh happens to have expired last month, है ना? How many spokes are there in Ashok Chakra? Okay, how many spokes are there? 24 spokes, है ना? This is the Ashok Chakra and these are the spokes. There are 24 of them. Okay, this is the colored part of our eye. Okay, the black part or brown part, whoever have brown eyes, not the white part, the colored one part is called iris. IRIS, iris. Okay, it's called iris. Hope you can see it. Number 5. Who was the principal contributor and practitioner of ancient system of Indian medicine called Ayurveda and wrote a book on it? Who was the principal contributor? Chakra. Our body has number of chakra and Ayurveda is related to it. Okay. Here's a relationship puzzle. Aman says Natasha. Aman ने Natasha को कहा, your brother is son of my father. तुम्हारा भाई मेरे पापा का, या तुम्हारा भाई मेरे पापा का बेटा है. मेरे पापा का बेटा. How Natasha is related to Aman's father. ठीक है? So Natasha उसकी क्या है? niece. Who is niece? तुम्हारा मम्मी के फैमिली के जो कजन्स है, तुम्हारे मामा का बेटा या फिर बेटी, दे आर कॉल्ड नीस. ठीक. और जो तुम्हारा पापा के बेटा है, पापा के फैमिली के है, चाचा या तुम्हारे बड़े पापा के ऑफस्प्रिंग्स, दे आर कॉल्ड कजन्स. ना विच गॉड इज अर्जुनास फादर इन महाभारत? महाभारत में अर्जुन के पिताजी कौन थे? इंद्र और इंद्र. ठीक है, INDRA. Who was the first Indian to win individual Olympic gold medal
इंडिविजुअल स्पोर्ट में पहला ओलंपिक मेडल जीता था अभिनव बिंद्रा ने, बिंद्रा BINDRA, अभिनव बिंद्रा। व्हाट डज 23 आवर्स मीन? तो ये 24 आवर्स क्लॉक है, हम 12 घंटे का क्लॉक फॉलो करते हैं। इसमें क्या होता है, दोपहर के 12 बजे के बाद एक बजता है ना, तो एक नहीं काउंट करते हैं, 13 काउंट करते हैं। 13, 14, 15, 16 ऐसे ही घूम फिर के वो दोबारा 24 जब लगता है तब रात के 12 बज जाते हैं। तो 24 नहीं है, 24 नहीं है, 23 है, मतलब 12 से एक कम, मतलब 11 बजा रात का, 11:23 रात दोपहर के 12 के बाद 13 काउंट करना, जब 24 आएगा रात का 12 बज जाएगा। दिस इज इंटरनेशनल एयरपोर्ट एट कोलकाता। कोलकाता का इंटरनेशनल एयरपोर्ट को क्या कहते हैं? नेताजी, पहले लिख लो, सुभाष चंद्र बोस। एयरपोर्ट को मैंने AP लिखा है, ठीक है, जगह नहीं है इसलिए। नेताजी NETAGI, सुभाष चंद्र CHANDRA बोस एयरपोर्ट। उनका नारा था, स्लोगन था, दिल्ली चलो, ठीक है। रेवोल्यूशन के टाइम में, आपका इंडिपेंडेंस का जब रेवोल्यूशन चल रहा था उसके टाइम। ओके, व्हाट आर ट्रेडिशनल टिबेटियन बुद्धिस्ट पेंटिंग कॉल्ड? ठीक है, तो जो बुद्धिस्ट पेंटिंग्स होते हैं मोनास्ट्रीज वगैरह में, दे आर कॉल्ड तंगका, THAN, तंगका। मे बी द स्पेलिंग इज इनकरेक्ट, जस्ट क्रॉस चेक तंगका का स्पेलिंग क्या है, ठीक है। विच ऑफ दिस एनर्जी रिसोर्सेज इज रीन्यूएबल? कौन से एनर्जी रिसोर्सेज रीन्यूएबल है? दे आर रिप्लेनिशेबल। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोलियम रिप्लेनिशेबल नहीं है, CNG भी नहीं है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी दोबारा प्रोड्यूस किया जा सकता है। Where was महावीरा, द फाउंडर ऑफ जैनिज्म बॉर्न? जैनिज्म जो रिलीजन है, उनके फाउंडर महावीरा कहाँ जन्म लिए थे? वैशाली डिस्ट्रिक्ट, वैशाली जो कहाँ पे है? बिहार, ठीक है। विच सिटी विल होस्ट 2018 एशियन गेम्स? 2018 में एशियन गेम्स किसने हेल्ड किया था? विच सिटी? इट्स इन साउथ कोरिया। साउथ कोरिया, सिटी का नाम क्या था? आई थिंक इट वाज, देख लेते हैं, 21। ये वाला मुझे पता नहीं है, देख लेते क्या है। INCHEON, अच्छा, INCHEON, इनकन मे बी। साउथ, S लिखा है मैंने साउथ को, साउथ कोरिया, ठीक है। S मीन साउथ। अभी जी, I'm a half bird and half woman who is popular in popular folklore, lured sailors to their deaths in her sweet song, Who am I? तो ये मेरे ख्याल से पीछे सायरन लिखा है, बट मैंने पढ़ा नहीं है इसके बारे में। फोल्कलोर में, फोल्कलोर मतलब कहानी वगैरह जो होती है, फोल्क टेल्स वगैरह में बोला गया कि कोई ऐसा कैरेक्टर है जो आधा बर्ड और आधा वुमन की तरह लगता है, और वो सेलर्स को, नाविक को डेथ की तरफ ले जाते हैं एक स्वीट सॉन्ग गाना गा के, ठीक है। तो उसको सायरन कहते हैं। हमने पढ़ा नहीं है, हम सिर्फ आंसर लिख रहे हैं। ओके, ऑन विच आइलैंड वॉज जिम कुक किल्ड? जिम कुक वॉज अ सेलर, ठीक है, ट्रैवलर। 1979 में उनका डेथ हुआ था। कौन से आइलैंड में? हवाई। Who was the first woman president of UN General Assembly? Vijaya Lakshmi Pandit, PANDIT, ठीक है। स्पेलिंग इज विजया, VIJAYA,
LAKSHMI PANDIT. Pandit was the first president of UN General Assembly, first woman president. Which man-made structure stretches from Pacific Ocean to Gobi Desert? कौन सा मॉन्यूमेंट है जो पैसिफिक ओशियन से गोबी डेजर्ट तक जाता है इतना लंबा? तो सबसे लंबा एक ही है पूरी दुनिया में मॉन्यूमेंट, वो है ग्रेट वॉल ऑफ, कहाँ का ग्रेट वॉल? चाइना, CHINA, चाइना का स्पेलिंग सबको पता है, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, ठीक है। विच माइक्रोसॉफ्ट डिवाइसेस Windows 10 computer that you can wear as 3D experience to get a 3D experience? क्या पहन के तुम एक 3D एक्सपीरियंस ले सकते हो? नया सॉफ्टवेयर है, नया वो है, क्या कहते हैं, ओके, नया डिवाइस लॉन्च है, नया डिवाइस इंट्रोड्यूस हुआ जिसको पहन के तुम 3D एक्सपीरियंस कर सकते हो, दैट इज़ HoloLens. इट्स अ डिवाइस दैट यू कैन वेयर टू एक्सपीरियंस 3D स्ट्रक्चर, ठीक है, पहन सकते हो उसको आँख में ऐसे करके, वॉट एवर इट इज. विच एक्टर होल्ड्स द रिकॉर्ड ऑफ मोस्ट नंबर ऑफ फिल्म फेयर नॉमिनेशन? सबसे ज़्यादा नॉमिनेट किन को किया गया है फिल्म फेयर अवार्ड्स के लिए? अमिताभ बच्चन जी, BACCHAN, ठीक है, AMITABH BACCHAN, ठीक है. We'll do more in the next class. Let me give you a review. It's in the order of Grizzly Bear, Milkha Singh, 24 Spokes, Iris, Chakra, Knees, Indra, Abhinav Bindra, 1123, नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट, तंगका THANGKA, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी वैशाली बिहार, इनकेन साउथ कोरिया, साइरन हवाई विजया लक्ष्मी पंडित, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, HoloLens, द स्पेलिंग इज राइट हियर, HoloLens, अमिताभ बच्चन, ठीक है. विल डू मोर इन द नेक्स्ट क्लास. Until then, yeah, thank you.